Question number 1. (6.2) Question number 1. Please raise your hands for the answer. What is surprising about some women's attitude to violence against them according to the IIPS survey? Please raise your hands for the answer. Harleen Kaur 12A. Yes, beta. यस मैम मैम उन्हें ये लगता था कि जो उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है वो उनकी लाइफ का एक पार्ट है और वो उन्हीं की वजह से हो रहा है। मतलब अगर उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उसमें उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। They had been trained like that it seemed that it was okay if such crude behavior was taking place. Okay. Next question, my next question is, how will the societal forces be shaken out of their stupor? स्टूपर होता है जिसके अंदर हम अनकंसर्न्ड अपनी गहरी नींद में होते हैं, जिसके अंदर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको क्या हो रहा है. प्लीज रेज योर हैंड्स. किसी को नहीं मालूम है इसका आंसर? मैं मालूम है. प्लीज टेल. यस जसप्रीत. With the help of education, empowerment and emancipation. Okay, from the out of their stupor, the societal forces can be shaken by educating the women, by empowering them, and by bringing about a change in the thinking part of the society. Wonderful, very nice. Next question is, what is the origin of men's brutal behavior according to the author? कि men जो है वो इतना cruel, इतना brutally behave करते ही क्यों हैं? क्यों वो सोचते हैं कि वो शोविनिस्ट हैं? हरलीन कौर 12A. Yes, ma'am. Ma'am, because they are taught from the beginning that they are kind of superior sex, and it's their moral right that they can behave rudely with women. They can even apply violence against them if they want. Okay. So Gursharan Kaur also raised her hand. It is perfect, beta. It is absolutely right, Harleen. Gursharan Kaur. Okay, ma'am. क्योंकि मैम बचपन से उनको ये सिखाया जाता है कि मैन ज्यादा पावरफुल है अकॉर्डिंग टू वुमेन. तो क्या करना चाहिए, क्या सिखाना चाहिए? मैम बचपन से इक्वालिटी सिखानी चाहिए कि दोनों इक्वल हैं, दोनों के पास सेम राइट्स हैं. Okay. All right. So anybody else who wants to answer this? कोई और बच्चा जिसने हैंड रेज करा हो और जिसको मैंने मिस कर दिया हो? गुड मॉर्निंग मैम. बताओ कोई और बच्चा? Okay. So my next question is, what is the startling finding of ICRW study? ICRW ने क्या फाइंड आउट करा जो कि शॉकिंग है, स्टार्टलिंग है? क्लास 12 मैं ये चैलेंज करके बोल सकती हूँ कि तुमने अपनी पुरानी क्लासेस के अंदर कभी भी अनसीन पैसेजेस इस तरह से प्रैक्टिस नहीं करे. जब मैं आपको ये करा रही हूँ तो आपकी ये मॉरल ड्यूटी है कि आप सही या गलत डज नॉट मैटर. पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे आपके लिए ही मुश्किल होएगी, आपको ही नहीं आंसर समझ में आएंगे. और ये सिर्फ यही वाली सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन की बात नहीं है, इसके अंदर लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग है to be able to understand something and to be able to respond. बोलो कौन बता रहा है ये वाला आंसर? क्या स्टार्टलिंग फाइंडिंग है आईसीआरडब्ल्यू स्टडी की? मैम
किसने बोला मैम? Jaspreet Singh. ओके बेटा. So ICRW found out that domestic violence is prevalent, which does not respect any caste, class, religion, age, and education. And even like we discussed yesterday, not only in North India, it also prevails in South India, for example, in Kerala. Yeah, it is Gujarat, all over. It cuts all the boundaries and barricades. हरलीन आप अगला क्वेश्चन ट्राई करना बेटा, ताकि हम नेक्स्ट पैसेज भी डिस्कस कर सके बच्चे. What makes women Okay, ma'am. who are victims of domestic violence more vulnerable to continuing and rising abuse? ऐसा क्या होता है कि जो women domestic violence की sufferer होती हैं, victims होती हैं, वो ज्यादा vulnerable होती हैं कि इस तरह का बिहेवियर, ब्रूटल बिहेवियर उनके साथ होता रहे, कंटिन्यूड रहे और अब्यूज राइज होती रहे? बोलो बेटा, जिसको भी आता है आंसर बोलो, सही या गलत डज नॉट मैटर. प्लीज ट्राई. जसप्रीत. शिवम. ओके शिवम, 12D. Yes, it was. I think they were thinking that it was their part of their life. Is It is because they think that the society shall not be able to accept them if they take any steps, and then the future of their kids shall also be harmed. So they continue in that kind of a situation. So they become more vulnerable. Harleen Kaur also should answer. Yes, ma'am. Ma'am, they remain silent because of the sake of their children and because of shame and their family honor. Wonderful, very nice. Next question is, according to the author, what is necessary to ensure that freedom becomes meaningful for all individuals, especially women? Author के according क्या necessary है इस बात को इंश्योर करने के लिए कि फ्रीडम मीनिंगफुल रहे सबके लिए, सब इंडिविजुअल्स के लिए, स्पेशली विमेन के लिए? I am waiting. Anyone who has raised the hand and I have not seen the child? Japnoor. Okay. Yes, Japnoor. Ma'am, first of all, जो विक्टिम है अब्यूजिव, जो जितनी भी लेडीज हैं, या इनको इस सब चीज को हटाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरी है एजुकेशन, और जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जब हम पेरेंट्स को ये भी सिखाना चाहिए शुरू से, खासकर मेन मतलब जो लड़के होते हैं उनको सिखाना चाहिए कि आपको कैसे बिहेव करना है, इक्वली बिहेव करना है, आप कोई सुपीरियर नहीं हो सोसाइटी में, आप दोनों सेम हो, तो इस चीज से ये खत्म हो सकती है. Wonderful, very, very nice, Japnoor. First of all, very nice that you tried and then you are on the dot. It is that the training from the families, from particularly the mothers, they should teach their sons to remain dignified and they should learn to respect. And then the females should also be taught not only submit but also to have to be vocal. If the things are going wrong, they should be able to express themselves in a dignified manner. Self-worth should be taught to them. Next question now. Next question is, how do many women suffer in silence when they are subjected to domestic violence and abuse? How नहीं है, why है? क्यों ऐसे था कि women जो है वो चुप करके सफर करती रहती हैं जब उन्हें
डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज फेस करना पड़ता है? प्लीज रेज योर हैंड्स, फिर नहीं तो मैं बाय नेम बोलूंगी। ओके, सुखप्रीत कौर। मैम ये लास्ट क्वेश्चन से सिमिलर ही है जो इससे पहले क्वेश्चन हुआ था कि एक तो शेम, ये लोग क्या कहेंगे, ये सब, फिर वो अपने मतलब बच्चों के बारे में सोचती हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा। मतलब ये सारी मेनली कारण तो सोसाइटी है जिस वजह से वो सब कुछ सहती रहती है बट किसी को बोलती नहीं है। Very nice, very, very good. It is because of the mindset of the society is such that the women, it is okay if the domestic violence and abuse is taking place. It is a family affair. And then the females do not have any support. Most of them are not educated. They do not have the courage to face the society. It is a matter of shame for them. And then they think about the future of their children and they quietly suffer. Next question now. Next question में next बच्चा नया बच्चा answer करे. Next question is, what kind of treatment do the victims of abuse get in courts and by police in many cases? कि कैसा वाला ट्रीटमेंट होता है जो वो पुलिस या कोर्ट्स के पास जाते हैं, या what advice does देवयानी श्रीवास्तव give such to such women? पहला आंसर जपनूर आप आंसर करना चाहते हो, हरलीन आप करना चाहते हो? मैम जितने अगर कोई वुमेन कोर्ट में जाती है अपने ये इशू लेकर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस से और कोर्ट से उनको बहुत ही ब्रूटली उनको बिहेव करा जाता है और उनको ये बोला जाता है कि कोई बात नहीं सह लो, ये तुम्हारा घर का मामला है, इसको कोई इतना बड़ा इशू नहीं बोला जाता। उससे ये बोला जाता है कि हाउस होल्ड अफेयर में तुम्हारे। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत राइट आंसर है हरलीन। अगला यस बेटा, somebody wants to say something? अगला क्वेश्चन जो है वो हरलीन आंसर करे, उससे अगला वाला फिर सुखप्रीत करे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसी का सेकंड पार्ट है कि देवयानी श्रीवास्तव उन्हें क्या सजेस्ट करती है, हरलीन कौर। यस मैम। मैम देवयानी श्रीवास्तव ने ये सजेस्ट करती है कि दो ये जो भी उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उनकी वजह से नहीं हो रहा, बट वो उसको सह रहे हैं और किसी को बता नहीं रहे। कहीं ना कहीं इसका जो रीजन है ये मतलब उनकी वजह से ही हो रहा है। उन्हें एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कि वो किसी और की हेल्प ले सके, अगर जैसे और कोई पुलिस या कोर्ट्स में उन्हें नहीं जस्टिस मिल रहा तो, बट एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कि उन्हें जस्टिस मिले। वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, सुखप्रीत अगर तुम्हें आता होएगा तो तुम आंसर करना बेटा, और गुरमीत, और भी बहुत सारे लोगों ने शायद हैंड्स रेज करे, मुझे पता नहीं चला। सुखप्रीत और गुरमीत दोनों आंसर करना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हाउ आर विमेन लाइक द 22-year-old Radha's ray of hope for the victims of domestic violence and abuse? Yes, Sukhpreet. बोलो बेटा। Sukhpreet, are you answering? नो मैम। गुरमीत कौर? यस मैम। मैम उनको क्या कहते हैं, कोई सपोर्ट नहीं मिलता अपनी लाइफ में। और मैम ऑलमोस्ट मतलब जो होते हैं वो वर्किंग वुमेन्स होती हैं इसमें, जैसे कि राधा थी। और मैम कई ट्रेनिंग प्राइवेट स्कूल में टीचर्स भी होती हैं मैम, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलता, इसलिए उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होती है।
सपोर्ट नहीं मिलता इज राइट बेटा। जसप्रीत सिंह, हरलीन कौर आप आंसर करो, हमने भी हैंड रेज करा हुआ है इसका, फिर उसके बाद जसप्रीत सिंह इस आंसर को इलेबोरेट करेगा। Yes, ma'am. Ma'am, in the question as Radha से compare किया है, Radha was declared insane by her husband because he loved another woman. Though she was physically battered, she was not very well. He worked as a teacher in a private school, and after that he also worked as a nurse in UNICEF nurses training program. And after that she also completed her graduation. तो इससे बाकी वुमेन्स को मतलब कि एक मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि जैसे उन्होंने वहीं दबके नहीं रह गई, उन्होंने आगे काम किया और अपने आप को रेस किया। वंडरफुल, वेरी नाइस हरलीन, मे गॉड ब्लेस यू बेटे। अभी जसप्रीत अगला थैंक यू आंसर मैम। है, आप आंसर कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन ये था कि राधा कैसे एक उम्मीद है, एक रे ऑफ होप है फॉर अदर वुमेन जो कि सफर कर रही हैं फिजिकल इल ट्रीटमेंट बाय मेन, जिसको कि मेल शॉविनिज्म भी बोला जाता है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिसाइड्स इफेक्टिव लॉज व्हाट एल्स इज नेसेसरी टू चेक द मेनेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। लॉज के अलावा और क्या चीजें जो है वो जरूरी हैं ताकि हम इस प्रॉब्लम ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को एड्रेस कर सकें, चेक कर सकें। गुरमीत कौर आप आंसर करना चाहते हो बेटा? नो मैम। अपना May I? है? Yes, please, please, please. So, besides effective laws, what is required, that is, men, the male sex, should be sensitized into respecting women, because they should understand that women also has rights and they have self-worth. Secondly, mothers have to teach their sons the lessons of humanity and their daughters the lessons of self-worth, and they should teach them how to be vocal. And the third thing is, when the laws are providing legal freedom, they should also provide the freedom from the fear, which is very important according to Nobel laureate Amartya Sen. Very nice, very very nice, excellent answer. नेक्स्ट नाउ, अब तो ये बहुत इजी वाला पोर्शन आ गया, वर्ड्स बताने हैं। प्रेशराइज्ड और फोर्स टू डू समथिंग, पैराग्राफ 1 और 2 के बीच में से निकलना था। बताओ बच्चों। मैम मे आई? हरलीन, ओके। मैम फर्स्ट पैराग्राफ में है कोerced. Coerced, coerced, C-O-E-R-C-E-D, coerced. Okay, wonderful. State of near unconsciousness or inaction, paragraph 3 और 4 में। किसी को नहीं आता क्या ये?